آپ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی خصوصیات صحیح احادیث میں آیا ہے. ایک نمبر Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. آپ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی خصوصیات صحیح احادیث سے میرے دوستو صحیح احادیث میں آیا ہے. ایک نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے سب سے پہلے میرے دوستو فرماتے ہیں وہ کہ آپ سب سے پہلے شخص اول من اقتتن خصوصیات میں ختنہ کرنا. ابراہیم و خلیل اللہ نے میرے دوستوں اپنی جنہوں نے ختنہ کیا. تفسیری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بھائی ایک نمبر یہ روایت بخاری شریف کی 473 نمبر صفحہ جلد نمبر 1 ہے اور مسلم شریف جلد نمبر 265 نمبر صفحہ ہے کہ حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام جنہوں نے ختنہ کیا. تفسیری روایت میں یہ بھی آتا ہے میرے دوستوں کہ انبیاء علیہ السلام مختون پیدا ہوتے ہیں. تفسیری روایت میں یہ بھی انبیاء علیہ السلام مختون یعنی ختنے کیے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ختنے کیے ہوئے پیدا ہوئے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں ہوئے. انہیں 80 سال کی عمر میں ختنہ کا حکم ہوا. انہیں 80 سال کی عمر میں ختنہ کا حکم ہوا. چنانچہ قدوم کی مقام پر انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے سنت تطہیر ادا کی. یہ فرماتی ہیں اس کی دلائل دیکھیں تفسیر عزیزی پارہ نمبر 1 439 نمبر صفحہ 439 نمبر صفحہ. اب میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ انہیں 80 سال کی عمر میں ختنہ کا حکم ہوا. پھر چنانچہ قدوم کی مقام پر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دی سنت تطہیر ادا کیے. اب حکم یہ ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جائے تو اس سے چاہیے کہ یہ سنت ادا کرے خواہ عمر کی کسی بھی حصے میں ہو. بچوں کو ختنہ تو میرے دوستوں چھٹی میں کرا دینا سب سے بہترین ہے تھوڑی سی بڑے ہونے سے پہلے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دوسری خصوصیت یہ ایک نمبر خصوصیت سب سے پہلے انسان ہے جن کی ایک خصوصیت میں بیان کر رہا ہوں. ابھی ایک خصوصیت کیا ہے میں نے بتا دیا ختنہ کا کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں اللہ کو حکم ہوا جو کہ مقام قدوم انہوں نے قدوم کی مقام پر اپنے ہاتھوں سے خود اس سنت تطہیر ادا کی ہے. دوسرے نمبر خصوصیات ایک ہوتے ہیں نا بھائی چند خصوصیات باتوں کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان ہیں جن کی داڑھی پر سفید بال تھے. سفید بال نکلنے شروع ہوئے. تو آپ سے پہلے کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. سفید بال نہیں ہوا تھا. سب کی داڑھی سیاہ ہی رہا کرتی تھی نا. اب یہ دلیل سن لیں کہ تفسیر عزیزی فارسی پارہ نمبر 1 439 نمبر صفحہ ہے نا. 439 نمبر صفحہ داڑھی سیاہ تھی سب کی لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی داڑھی سفید نکلنے شروع ہوئے. جب ابراہیم علیہ السلام جوانی سے نکل کر بڑھاپے میں داخل ہوئے تو سفیدی دیکھ کر عرض کیا مولا کریم یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ وقار ہے ابراہیم یہ تمہارے وقار ہے. پوچھا اے مولا کریم یہ کیا ہے کہ میرے بال سفید ہونے لگا داڑھی کے بال سفید ہونے لگا. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ یہ وقار ہے تمہارا یہ آپ کا وقار ہے. آپ نے عرض کیا ہے اللہ زدنی وقارن میری اس عزت کو اور بڑھا دے میری عزت کو اور بڑھا دے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی آئی
اللہ ताला की वही आई, आई इब्राहिम अंता अक्रमानुल्लार्दी लैया, आप मेरी नजदीक रोए जमीन की तमाम इंसानों से बरगजीदा है, तमाम इंसानों से सबसे ज्यादा बरगजीदा है। जब आप नमाज अदा करते हैं, आप नमाज अदा करते वक्त हालत सिजदा में होते हैं, तो आपका सतर नहीं खुलना चाहिए। आप मेरे नजदीक, ये भी एक खुसूसियत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की एक खुसूसियत थी। दूसरे खुसूसियत क्या थे भाई? दाढ़ी का सफाई दी। तीसरे खुसूसियत क्या मेरे नजदीक पूरे कायनात की तमाम इंसानों से सबसे ज्यादा बरगजीदा बंदा है, आप मेरे खलीलुल्लाह है, आपका बहुत वकार है। जब ये कहा कि जितनी वकार मेरी इज्जत को और बढ़ा दीजिए, अल्लाह ने भी फरमाया अंता अक्रमहुल्लार्दी लैया, आप मेरे नजदीक रोए जमीन की तमाम इंसानों से सबसे ज्यादा बरगजीदा हैं। जब आप नमाज अदा करते हैं, आप जब नमाज अदा करते हैं तो हालत सिजदा में होते हैं, तो आपका सतर नहीं खोलना चाहिए। हालत सिजदा में जब होते हैं आपकी सतर नहीं खोलना चाहिए। सुनांचे सबसे पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पायजामा पाजामा का रवाज डाल दी है। ये अल्लाह ने फरमाया, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पायजामा पहना, अगरचे तैबान भी पहना दुरुस्त नमाज की हालत में। ताहम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पायजामा भी पहना करो और तैबंद भी बंधा करो। यहूदी तैबंद ना बनते थे, इसी वजह से यहूदी लोग तैबंद नहीं बनते थे, इसलिए आप लोग तैबंद भी बंधा करो। धोतियां जो पहनना है ये रसूल की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पायजामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदा। रवायत में है अल्लाह के रसूल ने खरीदा है, पसंद फरमाया है, लेकिन अल्लाह के रसूल जिंदगी में अपने जिंदगी में कभी पहना नहीं है। पहनने का जिक्र किसी सही हदीस में नहीं मिलता, ताहम पायजामा खरीदने का जिक्र आता है। दलील तफसीर अजीजी फारसी पारा नंबर 1 439 नंबर सफा। मेरे दोस्तों आप देखिए, पहनने की जिक्र मिलता है, यह भी बता रहा है कि इब्ने माजा 256 नंबर सफा है, 256 नंबर सफा। ये बात कि इब्राहिम और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पायजामा भी पहना करो और तैबान भी बंधा करो। यूद तैबान नहीं बनते थे, यूद तैबान नहीं बनते थे। जो फरमाया इसका क्या दलील है? ज़ादुल मआद जिल्द नंबर 1 35 नंबर सफा। ये भी फरमा दिया मेरे दोस्तों कि ये भी फरमाया कि सही हदीस में नहीं मिलता कि अल्लाह के रसूल ने कभी पायजामा भी पहने हैं। हाँ, खरीदने का जिक्र आता है। इब्ने माजा क्या है? सफा नंबर 256। अब आइए मेरे दोस्तों, ये एक खुसूसियत पायजामा का, कितना है? 3 खुसूसियत। चौथी नंबर खुसूसियत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के इब्न अबी शैबा की रवायत में आता है कि मिंबर पर खड़े होकर सबसे पहले खुतबा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। मिंबर में सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? खड़े होकर जो खुतबा दिया था हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले खुतबा दिया। और दायमी की रवायत में है सबसे पहले खुतबा दिया। क्या है? तफसीर अजीजी फारसी 439 नंबर सफा पारा नंबर 1 है। फिर फरमाया मेरे दोस्तों, फिर क्या फरमाया कि ये तो इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की फिर देमी की रवायत में है कि मेहमानों की खातिर सबसे पहले आपने नान शिरमाल तैयार किया। सबसे पहले नान शिरमाल तैयार किया। यह खाना दूध और नान के मरकब से तैयार की जाता है। बर्र सगीर में हैदराबाद दक्कन वगैरह में बड़ी मिलता है। जो हैदराबाद दक्कन गए होंगे तो बड़े मजे का है। नान शिरमाल सबसे पहले इब्राहिम और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने शुरू किया मिंबर पर खुतबा देना। इनकी खुसूसियत में कितना नंबर है? ये चौथे नंबर।
5वां नंबर में मेरे दोस्तों नान और शिरमाल का इब्तदा हजरत इब्राहिम और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है मेरे दोस्तों। उसकी बाद 6वां नंबर खुसूसियात में से चंद खुसूसियात इब्राहिम और खलीलुल्लाह की, वो क्या है मेरे दोस्तों? मुआनका। मुआनका किसको कहते हैं? गले मिलाना मेरे दोस्तों। ईद में आप भी गले मिलाते हैं, हम भी मिलाते हैं, सब मिलाते हैं। अब गले मिलाना, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब कोई भी मेहमान आते थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर सबसे गले मिला करते थे। कोई शख्स बाहर से आता तो आप उससे गले मिलते थे। आप मेरे दोस्तों कहते हैं कि बैतुल मुकद्दस की करीब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानवरों की चरागाह की तलाश में किसी पहाड़ के अंदर तक चले गए। वहां देखा कि एक अल्लाह की बंदे, एक आवाज आई, एक आवाज एक मकाम पर निहायत ही गुमनाक आवाज सुनी कि कोई शख्स निहायत ही खुशू के साथ, वो होती ही खुशू के साथ बिल्कुल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाना, अल्लाह की जिक्र कर रहा था। आप इधर उधर मुतवज्जो हुए तो देखा कि एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स अपने हाल में खूब मजे से बड़े मीठे अंदाज से मेरे दोस्तों अल्लाह की जिक्र में मशगूल। आपने उस बूढ़े शख्स से दरियाफ्त किया कि तुम किसको याद कर रहे हो? तुम किसको याद कर रहे हो? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, 6वां नंबर खुसूसियात इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बैतुल मुकद्दस के एक पहाड़ में जानवरों की, ना बैतुल मुकद्दस की करीब, ना जानवरों की चरागाह की तलाश में किसी एक पहाड़ की गार के अंदर चले गए तो वहां से एक आवाज आई, गुमनाक आवाज सुनी। इधर उधर देखे तो अल्लाह के बंदे कि एक बंदा अल्लाह की जिक्र कर रहे हैं। वो बहुत ज़ईफ़ुल उमर शख्स था। इस हाल में बड़े मीठे अंदाज से बड़े लुत्फ ना उठा रहा है, वो उससे इतने लुत्फ और महव अंदाज से जो है वो अल्लाह की जिक्र कर रहे हैं। तो उस बूढ़े शख्स से हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दरियाफ्त फरमाया, आप किसको याद करें? उसने कहा अल्लाह को। बोले अल्लाह कहाँ है? बोले अल्लाह आसमान में है। अल्लाह कहाँ है भाई? अल्लाह कहाँ है? बोले अल्लाह। जवाब दिया अल्लाह आसमान में। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह जमीन में भी है। अल्लाह आसमानों में नहीं, अल्लाह जमीनों में भी, अल्लाह समंदरों में भी, अल्लाह पहाड़ों में भी। अल्लाह तुम्हारे शाहरक से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा अल्लाह तो जमीन पर भी है, फिर कहने लगा, फिर आपने पूछा तुम्हारा किबला किधर है? बोले हमारे किबला बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह की तरफ इशारा किया। तो आपने पूछा तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? उसने जवाब दिया मेरे ठिकाना नीचे उसी गार में। तो इशारा किया और तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उस बूढ़े का ठिकाना देखने की ख्वाहिश जाहिर की। बोले तुम अपनी ठिकाना मुझे तो दिखा दो। तो बूढ़े ने कहा कि वहां जाना महाल है, मुश्किल है। महाल मानी मुमकिन नहीं है, महाल है, जा नहीं सकते आप। बोले क्यों? कि रास्ते में गहरी नदी पड़ती है, बहुत गहरी नदी है ना, तो जैसे अबूर नहीं किया जा सकता। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा तुम कैसे पहुंच जाते हो? तो उसने जवाब दिया खर्क़े आदत से, यानी करामत से। हकीकत में वो अल्लाह का वली था, वो खर्क़े आदत अपने करामत के जरिया से उसी गहरी समंदर से निकल जाते थे, गहरी नदी से। तो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसकी वजह से मैं खुश पांव अबूर कर लेता हूं, मेरे पांव गीले नहीं होते। फिर जब ये कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा चलो हम भी तो उसी तरीके से चलते हैं, जो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए पानी को मुसक्कर करता है वो मेरे लिए भी करेगा। तुम्हारे लिए पानी को मुसक्कर कर दिया है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पानी को ताबे कर दिया है, वो अल्लाह ताला मेरे लिए तो पानी को ताबे और मुसक्कर कर देगा। ये जब फरमाया चुनांचे दोनों चल दिए गार में दोनों चल दिए। मेरे दोस्तों जब चल दिए तो गार में
आने के लिए, तो बीच में देखा हां तो आगे नदी थी, अल्लाह ताला के हुक्म से उसे अबूर कर लिया दोनों। देखा कि हकीकत में आगे में गार से आगे दोनों चल दिए। जब गार के आड़ में देखा तो कि नदी भी है, इसके आगे नदी। तो शख्स के इबादत खाने में पहुंचे, अबूर किया और आपकी पांव तक नहीं भीगे, पानी के नीचे आप उस शख्स के इबादत खाने में पहुंचे तो देखा कि उसकी निशानदेही की इबादत खाने का रुख वाकई बैतुल्लाह की तरफ था। पानी के नीचे गार के अंदर इबादत फरमा रहे थे वह अल्लाह के बंदे ज़ईफुल उमर इब्राहिम और खलीलुल्लाह भी वहां पर पहुंचे और देखा कि उस पानी के नीचे की जो गार है उसी के अंदर देखा उसकी रुख बैतुल्लाह की तरफ है। जब ये देखा हज़रत इब्राहिम और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमाया कि आप बहुत खुश हुए कि अल्लाह ताला की मखलूक में ये खुदा फरस्त इंसान है। इब्राहिम खलीलुल्लाह बड़े खुश हुए कि अब बड़े खुदा फरस्त इंसान है ये। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, आए बुजुर्ग ये बताओ कि सबसे खौफनाक दिन कौन है? मेरे से पूछा सबसे खौफनाक दिन कौन है? कहा कि जिस दिन अल्लाह अपने इंसाफ अदल इंसाफ के लिए कुर्सी पर बैठेगा, जिस दिन अल्लाह ताला अदल पर बैठेगा, अदालत लगाने के लिए कुर्सी पर बैठेगा, अदालत लगाने के लिए, यानी क़यामत के दिन। और नबी और अल्लाह ताला की सब मुकर्रब बंदे सारे के सारे लर्जा उठेंगे। फकाना थबा मुंबसा। मेरे दोस्तों वो क़यामत की दिन, अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पहाड़ तोड़ फोड़ कर रुई की जैसे तोदे बन जाएंगे। फकाना थबा मुंबसा। वो क़यामत वाले दिन कि अल्लाह की वली नबी सारे के सारे लर्जा उठेंगे। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप दुआ करो कि हम दोनों के लिए उस दिन से आप दिन के लिए हमारे लिए दुआ करो कि अल्लाह हमें उस दिन से नजात अता फरमाए। तो वो ज़ईफुल उमर शख्स कहने लगा कि हम तो 2 साल से दुआ कर रहे हैं। बोले कैसे दुआ कर रहे हैं? बोले हाँ तो मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूं लेकिन अल्लाह ने मेरे दुआ को कबूल नहीं किया। बोले कैसे कबूल नहीं किया? आप भाई किसी ने दुआ कबूल नहीं हुआ तो कैसे आप बता सकते हैं? तो कहने लगा वो अल्लाह की बंदे कहने लगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने पूछा कि तुम्हारे दुआ क्या? उसने कहा कि मैं इस पहाड़ में गया तो मुझे एक जवान मिला जिसके बाल बिखरे हुए थे। मैंने उससे पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि अल्लाह ताला की दोस्त हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जानवरों के लिए चरागा मैं तलाश कर रहा हूँ। वो बूढ़ा कहता है इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त, या अल्लाह मैं उस दिन से दुआ करना शुरू कर दिया, अल्लाह तू तेरे खलीलुल्लाह से मेरे मुलाकात करा दे। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जितना भी दुआ किया लेकिन वो अल्लाह के दोस्त इब्राहिम और खलीलुल्लाह से मेरे मुलाकात नहीं हुई, इसी वजह से मेरे दुआ कबूल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, क्या मजे का बात था ये मेरे दोस्तों। दुनिया में तेरा कोई खलील इब्राहिम भी है तो मुझे उसकी ज़ियारत नसीब फरमा, मगर आज तक मेरे ये दुआ कबूल नहीं हुई। हजरत इब्राहिम और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़े मियाँ अल्लाह ताला ने तुम्हारे दुआ को कबूल फरमा लिया, कबूल फरमा ली है। उठो मेरे साथ मुआनका करो, गले मिला लो मेरे साथ। हो सुनांचे मुआनका की तरीका वहां से जारी हुआ, मुआनका की तरीका वहां से जारी हुआ। तफसीर दुर्र मंसूर ना जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 16, तफसीर अजीज फारसी 440 पारा नंबर 1 कि उस दिन से कि उनको बोला उठो बड़े मियाँ तुम्हारे दुआ अल्लाह ने कबूल कर लिया।
हज़रत इब्राहिम और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले गले उस अल्लाह की वली, उस बंदे से, बुजुर्ग से जो इब्राहिम और खलीलुल्लाह से मुलाकात करना चाहते थे, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाया। इब्राहिम और खलीलुल्लाह उसकी मकाम पर पहुंचे, उसकी गार पे पहुंचे, उसकी फिर नमाज, जायनमाज बिछाने का तरीका देखा कि बैतुल्लाह शरीफ की तरफ था। फिर वो पूछा कि तुम्हारे सबसे बड़ी दीन कौन सी है? फिर कहने लगा सबसे बड़ी दीन कौन सा है ना। फिर दुआ करने लगा, बुजुर्ग बताओ कि सबसे खौफनाक दीन कौन सी है? सबसे खौफनाक दीन, सबसे बड़ी दीन। कहने लगा अल्लाह अकबर, जिस दिन अल्लाह कुर्सी पर अदालत के लिए बैठ जाएंगे वही सबसे बड़ा दीन है, फिर हमारे लिए दुआ करना। बोले मैंने तो दुआ कर रहा हूं, मेरी दुआ कबूल नहीं। क्यों भाई? बोले इसलिए कि मैंने तो यहां देखा हूं कि अल्लाह की एक बंदा वो इब्राहिम और खलीलुल्लाह के बकरियों के लिए जगह तलाश कर रहा था। मैंने उनसे बड़े कहा खलीलुल्लाह भी कोई अल्लाह की बंदे, अल्लाह का कोई खलील है, अल्लाह तो उससे मुझे मुलाकात करा दे ना, तो इसलिए मेरी दुआ कबूल नहीं हुआ। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बात को जाहिर फरमा दी, अल्लाह की वली की किरामत थी और इब्राहिम खलीलुल्लाह की मौजज़ा अल्लाह ने इसे दिखा दी। आप देखें मेरे दोस्तों, हज की फजीलत, इससे आगे बैतुल्लाह की तामीरात की मामला आएगा। अब हज की फजीलत को देखें कि बैतुल्लाह की तामीर का तज़किरा आ गया, पहले काबतुल्लाह और हज की फजीलत के मुताल्लिक कुछ बयान होगा। सैयद इस मौजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 26 नंबर 206 नंबर सफ़ा, मुस्लिम शरीफ 436 नंबर जिल्द नंबर 1। क्या फरमाया? जिस शख्स ने अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी हुक्म की तामील में हज किया तो वो गुनाहों से इस तरह पाक लौटता है गोया के वो आज ही पैदा हुआ है, गोया कि वो आज ही माँ की पेट से पैदा हुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है, कंजुल अमाल जिल्द नंबर 13 186 186 188 नंबर सफ़ा कि बैतुल्लाह शरीफ पर हर रोज 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 120 रहमतें नाजिल होती है बैतुल्लाह शरीफ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि बैतुल्लाह शरीफ में 120 रहमतें नाजिल होती हैं। फरमाया कंजुल अमाल सफ़ा नंबर 186 ता 188 जिल्द नंबर 13, यानी कंजुल अमाल सफ़ा नंबर 182 जिल्द नंबर 13। फिर फरमाया उनमें से 60 तवाफ करने वाले, जो 120 रहमतें नाजिल होती हैं, 60 जब तवाफ करता है, 60 रहमतें जब तवाफ करते हैं 60 रहमतें नाजिल होती हैं। फिर उसकी बात फरमाया कि 40 दीगर इबादत करने वालों पर, 40 60 और 40 कितना हो गया? 100 दीगर इबादत करने वालों पर, और 20 उन लोगों पर नाजिल होती हैं जो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ देखते हैं, जो बैतुल्लाह शरीफ, लेकिन तवाफ की वक्त में नहीं देखना चाहिए। जब सबसे पहले बैतुल्लाह की तरफ दाखिल होते हैं मेरे दोस्तों, दाखिल होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस नियत से तुम दुआ करो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उसी वक्त दुआ शुरू कर दो, या अल्लाह ना। जो दुआ कबूल करोगे बैतुल्लाह की शरफ नजर करते ही अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाते हैं।